Let's talk about the Simon Commission. Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay, fine. So see, now we know that Simon go back. हमने बचपन में काफी सुना है स्कूल में जब पढ़ते थे. So let's talk little bit about the anti-Simon Commission movement. So see, this was a 7-member. It was Simon Commission. It was to come after the Montagu-Chelmsford reform. 10 साल के बाद आना था. It came 2 years earlier. So it was a 7-member, all white commission. All people were non-Indians. All white commission. ठीक है? It is also known as. So this may be asked. कि Indian Statutory Commission किसको कहते हैं? तो Simon Commission को ही Indian Statutory Commission we call it. We call it the Indian Statutory Commission or the Simon Commission, headed by Sir John Simon. ठीक है? Sir John Simon headed this. ठीक है? And it was constituted on November 8, 1927. ठीक है? Reforms were due in 1929 after the 1919 Montagu-Chelmsford reform और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी उसको हम कहते हैं. ठीक है? तो उस टाइम पे क्या था, कांग्रेस का रिस्पांस वाज वेरी, कांग्रेस का मद्रास सेशन हुआ था. इन द मद्रास सेशन, तो you need to know about the presidents of the Congress also. Madras session of 1927. At that time, president was M.A. Ansari. तो important जो commissions हैं, जैसे important जो time historical events हैं, वहाँ पे who were the president of Congress, that can be relevant information, and they kind of decided to boycott. They decided to boycott the commission. ठीक है? Because they thought that how could the foreigners decide Indian future? ठीक है? तो इसके बाद क्या हुआ, साइमन गो बैक एंड ऑल दीज थिंग्स. इवन पंडित नेहरू एंड सुभाष बोस were the vocal proponents of the opposition of this entire thing. ठीक है? इसमें you need to remember कि two parties, which two parties did not join the boycott. So unionists in Punjab, this becomes very important. Unionists in Punjab and the Justice Party in South. Justice Party in South. ठीक है? So they decided not to boycott the commission. So they did not boycott the Simon Commission. ठीक है? Just keep this is always look for the exceptions whenever we are studying. ना? Exceptions are generally asked. ठीक है? And उस टाइम पे क्या हुआ फिर, after this police repression was really strong, and even the socialist groups that kind of started emerging. Key amongst them were Punjab Naujawan Bharat Sabha. Punjab Naujawan Bharat Sabha. Bhagat Singh was, an active part of this. Naujawan Bharat Sabha. Then we have this Workers and Peasants Party. These are socialists. ठीक है? New socialist groups जो इस टाइम पे emerge हुई. ठीक है? Workers and Peasants Party. Then we have Hindustan Seva Dal. This was in Karnataka. Hindustani Seva Dal in Karnataka. ठीक
ठीक है, पुलिस रिप्रेशन वाज रियली एक्सट्रीम. जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत, दे वर बीटन. एंड लाला लाजपत राय, हमने कल भी पढ़ा था, लाला लाजपत राय डाइड बिकॉज ऑफ द लाठी ब्लोज. ही डाइड ऑफ लाठी ब्लोज. ठीक है, ही इज कम टू द इंजरीज. ठीक है, नवंबर 28 में ही डाइड. अक्टूबर में ये लाठीचार्ज हुआ था एंड नवंबर में ही डाइड. November 1928 he died. And to avenge his death we yesterday studied कि किस तरह से Bhagat Singh and other people they avenged his death. Now after this Lord Birkenhead, ये आपको एक बड़ा important एक point है कि Lord Birkenhead he was the conservative secretary of state. जो secretary of state था ना Lord Birkenhead, तो ये पूछा जाता है कि इंडिया को चैलेंज दिया है. इसने बोला कि Indians cannot make their own constitution, they are not capable enough to do that. So he challenged that. So in opposition to his challenge, ठीक है, Birkenhead's challenge, an all parties conference was held. ठीक है, cannot frame constitution, cannot frame own constitution. ठीक है, all parties conference. ठीक है, it was held in February 1928 under the leadership of मोतीलाल नेहरू. ठीक है, इनकी लीडरशिप के अंडर ये कॉन्फ्रेंस हुई to draft some rules. ठीक है, the committee, then a committee was constituted. ठीक है, and the committee included various prominent leaders of those time, and we need to know that know the members of the committee. Important ones amongst them being Tej Bahadur Sapru. ये नाम याद रखने, तेज बहादुर सप्रू. ठीक है, then we have Subhash Bose. Then we have MS Annie. Then we have Ali Imam. ठीक है, मंगल सिंह. शोहाब कुरैशी. and Mr. G.R. Pradhan. तो इसने रिपोर्ट अपनी सबमिट की अगस्त 1928 में. ठीक है, तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स थे. उन्होंने दे फेवर्ड, इसमें इसी कमेटी में दे फेवर्ड डोमिनियन स्टेटस. मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स फेवर डोमिनियन स्टेटस. और यही बाद में अपोजिशन की गई इस चीज की किसके द्वारा, जो यंग लीडर्स थे जैसे पंडित नेहरू. ठीक है, पंडित नेहरू वगैरह ने, इन्होंने काफी अपोज किया कि डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि दिस रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, was confined only to British Indian provinces, confined not to the princely states, only to British India. सिर्फ ब्रिटिश इंडिया तक ये confined था. ठीक है, right? So these were a few things. फिर now Muhammad Ali Jinnah also at that time. ठीक है, Muhammad Ali Jinnah had certain issues. तो इसने भी फिर बाद में Delhi proposals they came up with. Muslim League came up with Delhi proposals. So what are the Muslim League's Delhi proposals? We'll quickly try to cover these. इसमें first था joint electorate in place of separate electorate for Muslims. Just beg your pardon, guys. ये actually Madras session of Congress में decide हुआ था. Little correction here. Madras session of Congress. Madras session of INC they proposed. फिर इसके opposition में Jinnah presented his 14 points. Yeah, now things are right. So these were the Delhi proposals. इसमें joint electorate की बात की. ठीक है, joint electorates, इसको बाद में जिन्ना ने अपोज किया. ठीक है, 1/3 representation to Muslims in Central Legislative Assembly.
in Central Legislative Assembly. Third was representation to Muslims in Punjab and Bengal with respect to their population. ठीक है, Punjab and Bengal with respect to their population के with respect to उनको देनी चाहिए. ठीक है, और एक 3 new Muslim majority provinces. 3 new Muslim majority provinces. उनमें सबसे important सिंध, बलोचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस. यहाँ पे आपके खान अब्दुल गफार खान भी वहीं से बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो हिंदू महासभा ने इसको वेहमेंटली अपोज किया. ठीक है, हिंदू महासभा अपोज्ड वेहमेंटली. ठीक है, हिंदू महासभा ने इस चीज को काफी वेहमेंटली अपोज किया. तो इवन Muslims were not happy with this, and then Mr. Jinnah, he came up with his 14 points. So in opposition to this, in opposition to these Delhi proposals, Muhammad Ali Jinnah, he came up Jinnah's 14 points. Jinnah's 14 points in opposition to the Delhi proposals. Now उस टाइम पे the young nationalists, ठीक है, उन्होंने रिजेक्ट की नेहरू रिपोर्ट. यंग नेशनलिस्ट वर सुभाष बोस एंड पंडित नेहरू. सो दे फाउंडेड इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग. ठीक है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग उन्होंने बनाई थी, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग. तो इनको ये लगा कि ये काफी एक क्या बोलते हैं उसको स्टेप बैकवर्ड है. हम डोमिनियन स्टेटस कब से हम पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, बट लेकिन हम फिर से वही डोमिनियन स्टेटस पे वापस जा रहे हैं. सो दैट इज अ रिग्रेसिव स्टेप. सो दे फाउंडेड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग. इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग. ठीक है, एंड की ब्रेन चाइल्ड बिहाइंड दिस वर सुभाष बोस एंड पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नॉट दी सीनियर नेहरू, जूनियर नेहरू. ठीक है, तो फिर कैलकाटा सेशन हुआ कांग्रेस का. कैलकाटा सेशन जो एनुअल सेशन होता है दिसंबर 1928 में. ये याद रखना, कांग्रेस के सेशन दिसंबर में ही होते थे मोस्टली 1928 में. तो इसमें 2 साल का पीरियड उन्होंने बोला कि 2 साल का पीरियड, फिर बाद में 2 साल तक हम मौका देंगे ब्रिटिशर्स को. अगर ऐसा नहीं माने वो हमारी डोमिनियन स्टेटस की बात, तो फिर हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे. तो इवेंचुअली इट वाज रिड्यूस्ड टू 1 ईयर कि हम ब्रिटिशर्स को 1 ईयर का टाइम देंगे. इफ दे डोंट एग्री देन वी विल कॉल फॉर पूर्ण स्वराज एज द गोल. पूर्ण स्वराज इज द गोल ऑफ द इंडिया फ्रीडम मूवमेंट. ठीक है, तो उसके बाद आपको पता है कि जो 1929 की जो इम्पोर्टेंट वो हुई थी, लाहौर कराची सेशन हुआ था. उससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था. तो उसमें किस किस को इंडाइट किया गया. सो वी हैव मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस. When did it take place? 1929. तो इसमें जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था, ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त. ठीक है, दैट वाज द केस. ठीक, उसके बाद यू टॉक अबाउट समथिंग मोर इम्पोर्टेंट हियर. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बात हुई. ठीक है, लॉर्ड इरविन ने कहा कि लेट्स रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड लेट्स होल्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस टू बी हेल्ड. सो द टॉक ऑफ राउंड टेबल conferences to resolve the deadlock, to resolve the deadlock or the evolving constitutional crisis at that time, that the conflicts and the revolts. And in the meantime, there happened the Lahore session of the Congress. Lahore session, ठीक है, ये banks of Ravi में हुआ था 1929. It was headed by Pandit Jawaharlal Nehru, and it proclaimed पूर्ण स्वराज to be the goal of the Congress. ठीक है, गांधी जी की पूरी बैकिंग थी, पूर्ण स्वराज. So it had पूर्ण स्वराज as the goal of the Congress. ठीक, तो इसके कुछ प्रपोजल्स थे, जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बायकॉट कर दो, RTC टू बी बायकॉटेड.
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट कर दो। कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब पूर्ण स्वराज आपका गोल है। 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे बनाया जाना था, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज द रिपब्लिक डे टू गिव क्रेडिबिलिटी टू दिस। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? बैंक्स ऑफ रिवर रावी। ठीक, so that was about it. After that, you know, when the things did not work out, so Gandhi ji eventually he started the civil disobedience movement. Civil disobedience आपकी डांडी मार्च से स्टार्ट हुई। तो civil disobedience movement, it was the defining moment of 1930s. Civil disobedience movement, it was actually the what you call the Indian version of Boston Tea Party. थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा बाद में। ये बॉस्टन टी पार्टी अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम पे हुआ था, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने पूरा एक the ship filled with tea was dumped into the sea, so they showed their resistance. So it is Indian version of the Boston Tea Party. तो डांडी मार्च, ठीक है, कब से कब तक हुई थी? मार्च 12 टू अप्रैल 6 1930। ठीक है, सो साबरमती आश्रम से शुरू होना था इन्होंने। ठीक है, गांधी जी के साथ कितने और फॉलोअर्स ने उनके? 78। गांधी जी along with 78 members of the ashram, they left for breaking the salt law। ठीक है, तो फिर गांधी जी की एक पॉपुलर स्टेटमेंट है, विद दिस हैंडफुल ऑफ सॉल्ट आई एम शेकिंग द फाउंडेशंस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये उनकी एक पॉपुलर स्टेटमेंट थी। तो इवेंचुअली दिस हैपेंड इन क्या बोलते हैं, सॉलिडारिटी विद दिस salt laws were broken in various parts of the country. जैसे if we talk about major ones, Sri Raja Gopalachari, he did this in Trichurupalli to Vedaranyam। ठीक है, then K Kelappan, he did it in Malabar। K Kelappan, he did this in Malabar region, Kerala part, the coastal Kerala। And in Assam also, Assam में क्या हुआ था? सत्याग्रहीज walked from Sylhet to Noakhali। Assam में Sylhet to Noakhali में in solidarity एक मार्च हुआ था। And आंध्र प्रदेश में CB Grams, number of CB Grams came up। CB Grams, they came up headquarters of the salt satyagraha। So this was actually, it galvanized the entire thing around this movement। And पेशावर में if we talk about, जिसको हम फ्रंटियर गांधी कहते हैं ना, खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान, he was also known as फ्रंटियर गांधी। he was also known as फ्रंटियर गांधी। ठीक है, तो he kind of organized the Pathans and wanted to bring social reform there। ठीक है, इन पश्तो। तो वहां पे एक पॉलिटिकल इनका एक मैगजीन आता था मंथली, उसका नाम था पुख्तून। जस्ट रिमेंबर दिस नेम, पुख्तून। अगर पूछेंगे किसका किसके एसोसिएटेड है, तो ये आपका खान अब्दुल गफार खान से एसोसिएटेड है। तो जो इनके वॉलंटियर्स थे उनको क्या कहते थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खुदाई खिदमतगार्स। खुदाई खिदमतगार्स, खुदाई खिदमतगार्स और रेड शर्ट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका एजेंडा क्या था? गांधीयन फिलोसफी पे चलते थे, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस इनका प्रिंसिपल था।
That is why he was called as the Frontier Gandhi. Frontier because Northwestern Frontier Province and Gandhian ideology he followed. Clear है यहाँ तक? Any doubts as of now? Yes, guys. No, sir. Okay. फिर नागालैंड में you had there was this brave young girl, you know, who raised the banner of revolt at a very young age of 13, Rani Gadinliu. Rani Gadinliu. So she was the champion of freedom movement in Nagaland Manipur area. ठीक है? And ये जो आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, तो इसमें क्या था? What was the key civil disobedience movement? If you look at the key indicators, तो women participation was really good. Students also participated in big numbers. ठीक है? And Muslim participation, however, came down with respect to the 1920s जो आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई थी, उसके हिसाब से it was nowhere close to that. Although here and there few lower class Muslims did participate in that. ठीक है? ट्राइबल्स की, पीजेंट्स की, सबकी पार्टिसिपेशन एक्टिव रही इसमें. ठीक है? एंड ठीक है, फिर क्या हुआ कि अच्छा हाँ, देन जो लॉर्ड उस टाइम पे वाइसरॉय थे, लॉर्ड इरविन थे, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात चल रही थी. तो कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कांग्रेस की साइड से जो नेगोशिएटर्स थे, देवर, ये नाम याद रखने होते हैं जो पूछे जाते हैं. तेज बहादुर सप्रू, देवर दी नेगोशिएटर्स आरटीसी के विद रिस्पेक्ट. तेज बहादुर सप्रू एंड एमआर जयकर. So these are two important names है. ठीक है? फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको पता है पार्टिसिपेट नहीं किया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने. ठीक है? एंड हु पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? फर्स्ट Ambedkar. या मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था. ठीक है? मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड. ठीक है? हिंदू महासभा ने पार्टिसिपेट किया. एंड लिबरल्स एंड प्रिंसेस आल्सो अटेंडेड. कांग्रेस डिड नॉट अटेंड. ठीक ठीक है. इसके बाद क्या हुआ? फिर गांधी इरविन पैक्ट साइन हो गया आपका. गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन. ठीक है? इसको हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं. ठीक है? तो इसके अंदर कुछ प्रोविजंस थे, जैसे सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दो, जो वायलेंस, जिन हु आर नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस. ठीक है? तो यही बाद में कॉन्फ्लिक्ट बन गया कि भगत सिंह और उनके जो कॉमरेड्स थे उनको क्यों नहीं छुड़ाया. ठीक है? तो ये इसके कुछ प्रोविजंस हैं, ये आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, अभी इतना जरूरी नहीं है. बस इसमें मेन प्रोविजन यही था कि ये पैक्ट साइन हुआ. फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इवेंचुअली द कांग्रेस एग्रीड टू पार्टिसिपेट. ठीक है? तो फिर उसके बाद आपका कराची सेशन हुआ 1931 में. ठीक है? अ स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस. इसके बाद कराची सेशन हुआ था. दैट वाज अ स्पेशल सेशन टू एंडोर्स दिस गांधी इरविन पैक्ट. ठीक है? ठीक है? इससे 6 दिन पहले क्या हुआ था? ये कब हुआ था आपका? 29 मार्च को. इसके 6 दिन पहले क्या हुआ था? एनीवन? जस्ट ट्राई टू थिंक. 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? Martyrs Day. Yeah, they were executed. The three Bhagat Singh Rajguru, they were executed, and
हर जगह गांधी जी एंड ऑल दीज पीपल वर मेट विद ब्लैक फ्लैग्स, ठीक है, ब्लैक फ्लैग प्रोटेस्ट इनको मिली थी कराची सेशन में जो, ठीक है। इसके बाद जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, गांधी जी वेंट, अदर पीपल वेंट, तो दे वर डिसअपॉइंटेड, नहीं उनके जो डिमांड्स जो पूरी नहीं हुई, ठीक है। इन सेकंड आरटीसी आल्सो द डिमांड्स वर नॉट मेट एंड eventually they decided to boycott it। फिर उसके बाद फिर गवर्नमेंट की रिप्रेशन फिर से शुरू शुरू हो गई, ठीक है। एंड eventually what happened, April 1934 गांधी जी decided to call off the movement, ठीक है। गांधी जी decided to call off the movement। We are trying to cover as much as possible in as less time as possible so that you get a good idea about most of the topics that are involved, ठीक है। तो जब सिविल डिसोबीडियंस, इससे पहले क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस जब शुरू हो गया था ना, तो उस बीच में क्या हुआ था, लॉर्ड विलिंगडन, मतलब ये हो गया था हालात कि उन्होंने गांधी को रिफ्यूज कर दिया मिलने के लिए, ही रिफ्यूज टू मीट गांधी। तो थिंग्स वर कमिंग टू अ हेड एट दैट टाइम। अच्छा, गांधी जी की एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी थी, महात्मा गांधी की, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, STS। सो ये दिस इज स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, मतलब पहले स्ट्रगल करना है, फिर यहाँ पे ट्रूस फेज में कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, ताकि आप नेक्स्ट फेज ऑफ स्ट्रगल के लिए एनर्जी गैदर कर सको। दिस वाज गांधी जी। देन पंडित नेहरू का फॉर्मूला था, स्ट्रगल विक्ट्री, स्ट्रगल करो और जब तक विक्ट्री ना मिले स्ट्रगल करते रहो। बट बाद में ही ऑल्सो एग्रीड टू द गांधीयन आइडिया बिकॉज सच मोमेंटम कैन नॉट बी मेंटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। फिर आपका एक इम्पॉर्टेंट एक हिस्टोरिकल जो एक था पॉइंट, वो था कम्युनल पैक्ट, कम्युनल अकॉर्ड, ठीक, कम्युनल अकॉर्ड, ठीक है। इसमें क्या किया गया, जो आपकी सेपरेट इलेक्टोरेट थी ना, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस हैड ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड, अब क्या किया, डिप्रेस क्लासेस को भी दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज माइनॉरिटीज, एंड उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। सो डिप्रेस्ड क्लासेस आल्सो गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये गांधी जी इसके टोटल अगेंस्ट थे। इन्होंने कहा कि इससे पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा सिस्टम का। एंड फिर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में काफी वो हुई, डेलिब्रेशंस हुई, एंड पूना पैक्ट साइन किया गया उसमें। फिर पूना पैक्ट, तो दे केम टू एन एग्रीमेंट। तो उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को तो खत्म कर दिया गया, separate electorate were abandoned, but the reserved seats were reserved for the depressed classes and were increased. The reserved seats for depressed classes, they were increased. Increased from 71 to 147, ठीक है। तो ये एक था आपका कम्युनल अवार्ड। इस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड वाज देयर। गांधी जी, अच्छा गांधी जी ने ना फॉर द वेलफेयर ऑफ untouchables, he started this movement, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। तो ये नाम याद रखें, ये पूछ लेगा, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग किसने बनाया। Who was the founder? Mr. Gandhi. And he had his, this newspaper also, हरिजन। तो ये इन्होंने बनाए थे when he was in jail only, जेल से इन्होंने ये कर दिया था प्रोसेस स्टार्ट। he also kind of started हरिजन सेवक संघ। हरिजन, ये तो इनका वीकली था, वीकली न्यूज़पेपर या जो भी कहता हूँ, जर्नल, हरिजन सेवक संघ। दीज आर ऑल द एफर्ट्स टेकन बाय पंडित महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट नहीं थे, बट अनटचेबिलिटी को वो डिटेस्ट करते थे कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए।
उनको लगता था वर्ना सिस्टम ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको? Then the next, important thing in line is Government of India Act 1935. ठीक, तो इसके कुछ प्रोविजंस हैं। सबसे पहला, it provided for the formation of All India Federation. ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन बननी चाहिए। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, इसमें कौन कौन होगा? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, जिसको आज हम यूटीज कहते हैं, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ठीक है, ये तीनों कैटेगरीज के इसमें इंक्लूड करने की बात की गई। फिर इसमें एक और चीज की जो डायरकी थी, आपने देखा था ना, रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट, डायरकी वाज अबॉलिश्ड इन प्रोविंसेस। डायरकी डबल रूल, इट वाज abolished in provinces, and it was introduced in the center, but वो center वाला कभी, it never came into being, so just ignore it because you will get confused. So center में वो आया ही नहीं कभी in practice। ठीक है, अब क्या हुआ साथ में लेजिस्लेचर में, 80% आपका बजट वोटेबल बना दिया गया। 80% बजट वाज मेड वोटेबल। ठीक है, रेजिडुअरी पावर किसके पास थी? रेजिडुअरी पावर ये गवर्नर जनरल के पास ही थी, जो आपका वाइस रॉय और गवर्नर जनरल। ठीक है, रेजिडुअरी पावर्स वर गिवन टू हिम। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट को भी ऑपरेशनल कर दिया गया। तो ये सब चीजें थी। तो इसके बाद आई मीन द थिंग वाज, आई मीन the Britishers, they tried to bring in some sort of responsible government, but nothing really, on ground, nothing changed. It was basically only to manage and, make things a little more convenient for them to rule. ठीक, any doubts यहाँ पे? ठीक है, तो ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद क्या हुआ, जब इलेक्शंस हुई, तो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनी। 28, तो उसको कहते हैं 28 months ऑफ कांग्रेस रूल। 28 months ऑफ कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस, तो उसमें कांग्रेस का रूल हुआ। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे मिनिस्ट्रीज बनी थी, ये प्रोविंसेस के नाम याद रख लें बस। बॉम्बे, मद्रास। Am I audible, guys? Can you confirm whether I'm audible? I think there is some network issue. Can anyone confirm, please? Audible, sir. Okay, कुछ I think there is a technical issue है। तो बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, और कहाँ पे बनी थी? सेंट्रल प्रोविंसेस। दिस मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम एज वेल। सेंट्रल प्रोविंसेस, देन यूपी, जिसको अभी यूपी उत्तर प्रदेश और तब यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था, बिहार, एंड लेटर इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, और असम में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। ठीक है, इट वाज हेयर, जब ये ऐसा हुआ ना, तो जिन्ना को लग गया कि अभी उसकी दाल गलने वाली नहीं है, बिकॉज इंडिया में रह के ही इज नॉट गोइंग टू गेट प्रोमिनेंस। तो दैट इज वेयर he and the Muslim League, they increased the tempo of the, championing the cause of a separate country of Pakistan. तो ये एक चीजें हुई। ठीक है, फिर 1938 में, 1938, अच्छा 1936 और 1937, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस? पंडित नेहरू। ठीक है, 1938 में
Who was the president? सुभाष बोस. तो सुभाष बोस की प्रेसिडेंसी में नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेटअप. नेशनल प्लानिंग कमेटी which was headed by Pandit Nehru only. ठीक है, these were the two young Turks who were heading the India's entire this thing. ठीक है. अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूँ. जो आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी ना 1930s की, वहां पे एक आपको एक क्वेश्चन पूछा था कई बार, कुनिंगम सर्कुलर क्या है? कुनिंगम सर्कुलर. ठीक है. ये था असम में ना, टीचर्स को, पेरेंट्स को अपने वार्ड्स के गुड कंडक्ट का एक सर्टिफिकेट देना है. तो ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस थी, टू गिव अ सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट ऑफ द चिल्ड्रन. ठीक. एंड लिटिल बिट लाइक दैट. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द लास्ट फेज. हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है ना, उसका लास्ट फेज हम एंटर हो गए. वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई है. क्या कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया हुआ है. तो इस टाइम पे क्या हुआ है, काफी जगह पे पैरेलल पैरेलल गवर्नमेंट्स बन गई. 1939 में एक और चीज हुई थी. अ, पहले तो सुभाष बोस ही वाज इलेक्टेड, बट देन बिकॉज गांधी जी वाज नॉट इन फेवर, एंड देन समवन एल्स, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, किसको बनाया गया था बाद में. तो उस टाइम पे सुभाष बोस ही स्टार्टेड फॉरवर्ड ब्लॉक. सुभाष बोस ही स्टार्टेड फॉरवर्ड ब्लॉक. मोनिका, कैन यू चेक 1939 में हु इवेंचुअली बिकेम द प्रेसिडेंट? आई एम फॉरगेटिंग द नेम. The forward bloc was founded by Subhash Bose in 1939. After that, eventually he left the Congress. Eventually he left the Congress and left India as well. Eventually he left the Congress. ठीक. Sir, in 1939, Subhash Bose was there. No, सुभाष बोस थे, but then he resigned later. उसके बाद कोई और बना था. सुभाष बोस को रिजाइन करना पड़ा था. He was there 1938-39 में, हरिपुरा एंड त्रिपुरी के 2 सेशंस में he was there, but he had to resign. Let me check यार कौन बना था. बिकॉज गांधी जी और इसके इनके बीच में कुछ पंगा था थोड़ा सा. Just a second. Let me check. चलो इसको बाद में देखते हैं. अगर आपको मिलता है तो आप बताना, नहीं तो बाद में विल चेक दिस. ठीक है. तो ही इवेंचुअली लेफ्ट द कांग्रेस. तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि काफी, मतलब गांधी जी पे भी प्रेशर आ रहा था कि आप फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट करो, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो कुछ करना नहीं है. तो उसी टाइम पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ना, एक मुस्लिम लीग का हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन पास हुआ था. मुस्लिम लीग passed its historical resolution in March 1940 in Lahore. It was known as the Pakistan Resolution. So the clamor for Pakistan increased. तो इसी बीच क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे, दे वांटेड टू काइंड ऑफ पैसिफाई थोड़ा सा जो इंडियंस हैं. इंडियंस को, जो नेशनलिस्ट है, उनको थोड़ा सा एक कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी तो उनकी हमेशा से थी. तो उनको थोड़ा सा एक, मतलब थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए एक ऑगस्ट ऑफर लेके आए वो. ऑगस्ट ऑफर. इट केम इन 1940. क्या प्रॉमिस किया इसने? सबसे पहले बोला डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा. डोमिनियन स्टेटस. और क्या बोला? एक्सपेंशन ऑफ वाइस रॉयज काउंसिल. हाँ, राजेंद्र प्रसाद, ओके.
एक्सपेंशन ऑफ वॉइस रॉइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसको एक्सपैंड किया गया। आई एम नॉट श्योर राजेंद्र प्रसाद, मतलब मे भी होगा फिर, ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट करने की बात की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, आफ्टर द वॉर। ये इन्होंने 3 मेजर रखे, ठीक है। अब क्या है इसमें, इसमें माइनॉरिटीज को वीटो दी गई, वीटो टू माइनॉरिटी। तो कांग्रेस रिजेक्टेड दिस, कांग्रेस रिजेक्टेड, ठीक है। मुस्लिम लीग ने भी ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया, बट उसने ये वीटो, वीटो जो दी गई है वो वेलकम किया। मुस्लिम लीग वेलकम दिस वीटो टू माइनॉरिटी, वेलकम दिस, ठीक है। सो दिस वाज ऑगस्ट ऑफर। इसके बस 2-3 प्रोविजंस मेन याद रख लो। कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, और जो मुस्लिम लीग ने जो वीटो दी गई थी माइनॉरिटी को, उसको वेलकम किया, ठीक है। तो इसी दौरान क्या किया, गांधी जी ने बोला कि अभी हम लिमिटेड सत्याग्रह शुरू करेंगे। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह, individual satyagraha was started, also known as limited satyagraha. Who was the first satyagrahi? विनोबा भावे। And second, Pandit Nehru. तो इसमें क्या करना था इन्होंने, जगह जगह जाके एक सिडिशियस प्रोपोगेंडा करना था, और अगर अरेस्ट किया जाए तो अरेस्ट ऑफर करना था खुद को, नहीं अरेस्ट होगा तो फिर से दूसरी जगह जाके उस चीज को कंटिन्यू करना था। तो दिस वाज बेसिकली टू बिल्ड अप मोमेंटम फॉर द फुल फ्लेज सत्याग्रह। इसके बाद फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक क्रिप्स मिशन भी लेके आई, क्रिप्स मिशन अंडर द लीडरशिप ऑफ सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो इसके मेन प्रपोजल्स क्या थे, अगेन डोमिनियन स्टेटस, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वॉर, ठीक है। और डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन इन इंडियन हैंड्स। ठीक है। एक इसने जो मेन यहाँ पे चीज की, एक इसने पार्टीशन का जो था ना, वो एक ऑप्शन दे दिया। तो इट प्रोवाइडेड अ ब्लूप्रिंट फॉर पार्टीशन, कि कोई भी प्रोविंस अगर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता है तो बना सकता है। तो इट गेव अ ब्लूप्रिंट फॉर पार्टीशन। दिस वाज द डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर व्हाट द कंसेशंस गिवन बाय दिस, ठीक है। क्रिप्स मिशन फेल हो गया, कांग्रेस ने भी ऑब्जेक्ट किया, डोमिनियन स्टेटस देना है जो पार्टीशन वाला प्लान था। और उसने, मुस्लिम लीग ने क्रिटिसाइज किया कि सिंगल यूनियन। सो बोथ कांग्रेस, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग रिजेक्टेड ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, ये दोनों ने रिजेक्ट किया इसको। दिस वाज द क्रिप्स मिशन, ठीक है। उसके बाद व्हाट हैपेंड, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की गई, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का आपको पता है कि मेन वॉर क्राई क्या था, डू और डाई, ठीक है। 1942, अगस्त 1942। तो मूवमेंट फिर फैल गई हर जगह जगह पे। इधर यहाँ पे मेजर जो जो अंडरग्राउंड एक्टिविटी थी ना उस टाइम पे, हम क्विट इंडिया मूवमेंट के जो अदर पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जो अनकन्वेंशनल अंडरग्राउंड एक्टिविटी, दिस वाज काइंड ऑफ प्रमोटेड बाय
sociologists, forward block members, Gandhi Ashramites, एंड अदर रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मेजर लीडर्स की बात करें जिन्होंने अंडरग्राउंड एक्टिविटी को पायनियर किया, सभी सुन रहे हैं ना? राम मनोहर लोहिया, ठीक है, जेपी जयप्रकाश नारायणन, अरुणा आसफ अली, ये सारे आपने नाम याद रखने हैं कि किस मूवमेंट से एसोसिएटेड है और क्या रोल रहा था। ये सारे अंडरग्राउंड एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। अरुणा आसफ अली, ठीक है। देन वी हैव बीजू पटनायक, ठीक है, और भी बहुत सारे थे। इसमें आपको उषा मेहता का नाम याद रखना है, उषा मेहता और उषा शर्मा। शी रैन एन अंडरग्राउंड रेडियो, ठीक है, अंडरग्राउंड रेडियो उन्होंने चलाया था ताकि जो भी प्रोपागेंडा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट की जा सके टू द डिफरेंट पीपल। तो एक और चीज हुई जो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पैरेलल गवर्नमेंट्स बनाई गई। पैरेलल गवर्नमेंट्स, पैरेलल गवर्नमेंट्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले बलिया में, ठीक है, अंडर चिट्टू पांडे, इन्होंने काफी कांग्रेस के लीडर्स को रिलीज करवाया। फिर तमलूक में, तमलूक कहाँ, मिदनापुर के पास, ठीक है, मिदनापुर, बंगाल। तो यहाँ पे भी विद्युत वाहिनीज ऑर्गेनाइज की गई, साइक्लोन रिलीफ वर्क किया गया, विद्युत वाहिनीज। फिर सतारा में भी एक हमारी हुई है, ठीक है, 1943 टू 45। इसका नाम दिया गया प्रांतीय सरकार, प्रांतीय सरकार। यहाँ पे जो मेन जो थे उनके नाम भी याद रखने जरूरी हैं। वाई बी चौहान, नाना पाटिल, और यहाँ पे इन्होंने गांधी मैरिजेस ऑर्गेनाइज करी, गांधी मैरिजेस। दिस इज वी टॉकिंग अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ओवरऑल क्विट इंडिया मूवमेंट में वुमेन की पार्टिसिपेशन काफी अच्छी रही। हमने देखा अरुणा आसिफ अली, वुमेन पार्टिसिपेशन वाज गुड। अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी और उषा मेहता, ऑल दीज वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द ओवरऑल क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। मुस्लिम्स ने कहाँ पे हेल्प की? शेल्टर प्रोवाइड करने में, ठीक है, शेल्टर, और नो कम्युनल क्लैशेस, कम्युनल क्लैशेस नहीं हुए, ठीक है। और क्विट इंडिया मूवमेंट का सबसे जो हाईलाइट है कि इट इवेंचुअली बिकेम वायलेंट। प्रिंसली स्टेट्स में ज्यादा नहीं इस पे असर पड़ा। प्रिंसली स्टेट में क्विट इंडिया मूवमेंट वाज वेरी लो की, बहुत कम रिस्पॉन्स रहा, एंड इवेंचुअली ओवरऑल क्विट इंडिया मूवमेंट बिकेम वायलेंट। बट दिस टाइम गांधी जी did not call it off, became violent later, in its later times, ठीक है। गांधी ने कहा अभी रिट्रीट नहीं हो सकता, इट्स लाइक डू और डाई, ठीक है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम में इवॉल्व होते होते एक वेवल प्लान आया आपका, वेवल प्लान 1945। Please confirm also whether I'm audible because I feel I'm. So you're audible. Yeah, so I thought maybe. Anyways, so वेवल प्लान आ गया। पहले हमने ऑगस्ट ऑफर पढ़ा, फिर आपका क्रिप्स मिशन आ गया, फिर उसके बाद वेवल प्लान आ गया, ठीक है। तो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस? ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अभी सोचा कि कुछ और इंडिया को वो देनी चाहिए कंसेशंस। तो लॉर्ड वेवल, ठीक है, द मीटिंग वाज कन्वीन्ड इन शिमला इन जून 1945, ठीक है। सो यहाँ पे क्या किया गया इन्होंने कि कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दो। कास्ट हिंदूज प्लस मुस्लिम्स टू बी गिवन इक्वल
representation, ठीक है। फिर गवर्नर जनरल वाज टू एक्सरसाइज वीटो, तो वीटो दे दी गई, पहले भी थी ऑब्वियसली। गवर्नर जनरल वीटो कंटिन्यूड, गवर्नर जनरल वीटो ओवर मिनिस्टर्स, ठीक है। एंड मुस्लिम लीग क्या चाहती थी सर इसमें? मुस्लिम लीग वांटेड ऑल मुस्लिम मेंबर्स टू बी लीग नॉमिनीज, ठीक है। ऑल मुस्लिम मेंबर्स टू बी लीग नॉमिनीज, मतलब मुस्लिम लीग के ही मेंबर होने चाहिए, मुस्लिम लीग को ही मुस्लिम मेंबर्स नॉमिनेट करने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने प्लान को ऑब्जेक्ट किया, कि कांग्रेस ने क्या बोला कि ये एक आइडिया है कि आप कांग्रेस को रिड्यूस करना चाहते हो सिर्फ एज अ हिंदू बॉडी, तो इट प्रेजेंटेड इटसेल्फ एज अ सेक्युलर आउटलुक, तो इट आल्सो ऑब्जेक्टेड टू दिस आइडिया, ठीक है। ठीक है, प्लान फेल क्यों हो गया? क्योंकि उसने ना मुस्लिम लीग को एक वर्चुअल सी वीटो दे दी, ठीक है। वर्चुअल वीटो वाज गिवन टू द दिस दिस प्लान आल्सो फेल्ड। फिर उसके बाद यू अंडरस्टैंड हाउ इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्म्ड, आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। इट वाज कंसीव्ड इन मलाया फर्स्ट ऑफ ऑल बाय मोहन सिंह, मोहन सिंह, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उनको ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। तो इनका वही था इंटेंशन कि जब इंडियन पीपल और कांग्रेस बुलाएगी तो हम इन्वेट करेंगे, वॉर, वी विल ओपन वॉर फ्रंट, ठीक है। बाद में यू नो हाउ सुभाष चंद्र बोस आल्सो वेंट देयर एंड ही ऑर्गेनाइज्ड द पीपल, सुभाष बोस, ठीक है, सुभाष बोस, ही रीच्ड सिंगापुर इन जुलाई 1943, ठीक है। तो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, तो हियर ही वाज असिस्टेड बाय रास बिहारी बोस, ठीक है, ही वाज असिस्टेड बाय रास बिहारी बोस आल्सो है। तो उन्होंने प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दी इन्होंने। व्हाट दे एस्टैब्लिश्ड? प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट, इसके हेडक्वार्टर्स थे कहाँ पे? रंगून और सिंगापुर में। these factual informations may be important, ठीक है। so even Subhash Bose asked for Mahatma Gandhi's blessings in this India's last war of independence, तो वहां पे उन्होंने एक वुमेन रेजिमेंट भी बनाई, रानी झांसी रेजिमेंट, रानी झांसी वुमेन रेजिमेंट बनाई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसका एक जो कैंपेन था, इम्फाल कैंपेन, इफ वी टॉक अबाउट द इम्फाल कैंपेन ऑफ द आईएनए, इट वाज हेडेड बाय शाहनवाज, ठीक है। so these were a few important facts about the uh, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, दैट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल है। फिर इसके बाद जब वॉर खत्म हो गई, तो कुछ जो नेवल ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ, ये जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ ट्रायल चलाया गया, तो दे वर अक्यूज्ड ऑफ सेडिशन। तो वहां पे देयर वर थ्री मेजर, सो आईएनए ट्रायल्स, अगर हम आईएनए ट्रायल्स की बात करें, जो पॉपुलर आईएनए ट्रायल्स था वो कहाँ पे हुआ था? रेड फोर्ट में, वहां पे थ्री मेजर, वन हिंदू, वन मुस्लिम एंड अ सिख। हिंदू वाज प्रेम कुमार सहगल, प्रेम कुमार सहगल, देन देयर वाज शाहनवाज खान, एंड गुरबख्श सिंह ढिलन, और ढिल्लों वट एवर वी कॉल इट, गुरबख्श सिंह ढिलन, ठीक है। सो वहां पे कांग्रेस ने रिप्यूट किया थ्री
मेजर लॉयर्स टू डिफेंड, डिफेंस डिफेंस किसने किया इनका? डिफेंस मेजर वंस बुल्ला भाई देसाई। ये क्वेश्चन आएगा, इसको थोड़ा ध्यान से। भुल्ला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, के एन काटजू, कैलाश नाथ काटजू, एंड नेहरू एंड आसफ अली, पंडित नेहरू एंड Aruna Asaf Ali. So these were the people who were involved in the defense of these national heroes of the Indian National Army. ठीक है, founded by first by Mohan Singh and then taken over by uh, Subhash Bose. So these trials were held in November 1945. ठीक है, क्लियर है? याद रहेगा, भूलना नहीं इसको। इसमें से क्वेश्चन आएगा तो हमें गलत नहीं करना है। ठीक है, और एक तीन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लो कि जो अ, जो प्रोटेस्ट हुई थी, नेवल रेटिंग्स की भी प्रोटेस्ट हुई थी, वो भी हम देखेंगे। उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट हाउ कैबिनेट मिशन प्लान दैट केम एंड it proved to be an important step in the overall constitution scheme. So the cabinet mission plan. Cabinet mission plan. किसने अनाउंस किया? क्लेमेंट एटली, the then premier of England, UK. In February 1946, he announced this cabinet mission plan to be headed by three British cabinet minister members named Patrick Lawrence. Okay. He was the Secretary of State. Then we have Sir Stanford Cripps. And the third one was A.V. Alexander. A.V. Alexander. ठीक है, so these were the three important people here. ठीक, तो कैबिनेट मिशन प्लान में क्या क्या इनका जो मेन प्रपोजल्स क्या थे कि इट रिजेक्टेड full fledged demand for Pakistan. It rejected a full fledged demand for Pakistan. ठीक, आर्म फोर्सेस की डिवीजन की बात की, तीन तरह की स्टेट्स की बात की, ए टाइप स्टेट्स, बी टाइप एंड सी टाइप। ए टाइप में आपकी आ गई मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार एंड उड़ीसा। बी टाइप में आपकी आ गई पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड सिंध. These were Muslim majority. And third was Bengal and Assam. These were again Muslim majority. ठीक है, एक और चीज जो उसने रेकमेंड की कैबिनेट मिशन प्लान ने, थ्री टियर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट. थ्री टियर गवर्नमेंट. और क्या बात की इसने? कॉमन सेंटर. दोनों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज बनेंगी, सेंटर कॉमन होएगा. कॉमन सेंटर जो क्या देखेगा? डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स. तो कॉमन सेंटर की बात की इन्होंने. आफ्टर दैट इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट प्रोविंसेस को रेजिडुअल पावर्स देने की बात की. तो ये क्वेश्चन पूछता है, प्रोविंसेस वर गिवन रेजिडुअल पावर्स. इससे पहले किसके पास थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने गवर्नर जनरल को दी थी रेजिडुअल पावर. तो इसमें प्रोविंसेस को रेजिडुअल पावर्स मिल गई. ठीक है, जो ब्रिटिश पैरामाउंसी खत्म हो जाएगी, प्रिंसली स्टेट्स नो लॉन्गर अंडर ब्रिटिश पैरामाउंसी. ठीक है, और इंटरिम गवर्नमेंट बना सकते हो आप.
ठीक है। अभी कांग्रेस ने क्या बोला, कांग्रेस को लगता था कि प्लान, अब कांग्रेस की क्या इंटरप्रिटेशन थी इसके केस में, कांग्रेस ने बोला कि ये पाकिस्तान के फॉर्मेशन के अगेंस्ट है, कांग्रेस को ये लगता था, और लीग की वीटो चली गई। लेकिन मुस्लिम लीग को लगता था कि पाकिस्तान इज इम्प्लाइड इन कंपल्सरी ग्रुपिंग, जो ग्रुपिंग कर दी गई है तो पाकिस्तान की फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। तो इवेंचुअली क्या हुआ था, इवेंचुअली उन्होंने ये कंफर्म किया था कि ग्रुपिंग कंपलसरी है। ठीक है, तो लीग को पॉजिटिव लगा और कांग्रेस ने इसको इवेंचुअली ये प्लान को रिजेक्ट किया। Just once. ठीक है, तो मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड, तो बीच में फिर क्या किया ना, इन्होंने ब्रोकर करने की कोशिश की दोनों, कांग्रेस में और उसमें। तो इवेंचुअली मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द प्लान, एक्सेप्टेड ऑन June 6, और कांग्रेस ने वैसे तो जो पाकिस्तान का पार्टीशन प्लान एक्सेप्ट नहीं किया, बट कांग्रेस ने जो लॉन्ग टर्म प्लान इट एक्सेप्टेड, ठीक है, ऑन June 24। Eventually, it paved the way for some sort of constitutional system to be evolved। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, July 29, 1946, ठीक है, मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया अपना एक्सेप्टेंस, इट विड्रू इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, क्यों किया इसने, क्योंकि पंडित नेहरू की एक स्टेटमेंट थी, पंडित नेहरू ने क्या कहा था, वी आर नॉट बाउंड बाय एनी सिंगल थिंग एक्सेप्ट दैट वी गो इनटू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, तो ये उसको लगा कि ये हमारा पाकिस्तान का डिमांड वो हो रहा है। देन ही लॉन्च डायरेक्ट एक्शन, ही लॉन्च मोहम्मद अली जिन्ना, he launched direct action, call for direct action, which led to a lot of violence as well on August 16, ठीक है, 1946, to achieve the dream of Pakistan। तो ये सारे जो भी इश्यूज बन रहे थे यहाँ पे, complications, can't go too much into detail of this, but I'm just trying to give you a little bit cursory idea so that you are able to address these questions। ठीक है, तो अभी जब हम पार्टीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फिर क्लेमेंट एटली का स्पीच स्टेटमेंट आता है, इसको हम एटली स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। क्लेमेंट एटली, देन प्रीमियर ऑफ ब्रिटेन। तो एज पर दिस, ठीक है, June 30, 1948 वाज केप्ट एज अ डेडलाइन फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर और इंडिया को छोड़ने का, तो June 30 रखी गई थी। पर हुआ क्या, इस बीच फिर माउंट बैटन को आना पड़ा, थोड़े से इशू होने लगे। तो वी टॉक अबाउट द माउंट बैटन प्लान, इसको June 3 प्लान के नाम से भी जाना जाता है। माउंट बैटन प्लान, June 3, 1947 प्लान। ठीक है, तो इट एम्ड एट अचीविंग एन आइडिया दैट फ्रीडम विद पार्टीशन फॉर्मूला। ठीक है, द आइडिया वाज फ्रीडम विद पार्टीशन, पार्टीशन अभी इट वाज मोर और लेस एग्री टू होनी ही है। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, उस चीज को जो हमारा रिट्रीट का आइडिया ब्रिटिश का, वो थोड़ा सा प्रीपोन कर दिया। नाउ 30 जून 1948 के बजाय 15 अगस्त 1947 that was done। So this was kind of a lot of difficult to do this all too much too quickly। ठीक है, तो इसके मेन पॉइंट्स, इफ वी ट्राई टू हैव अ लुक एट द मेन पॉइंट्स ऑफ द June 3 प्लान। पहला, कि सिंध अपना डिसीजन खुद लेगा, सिंध विल टेक इट्स ओन डिसीजन। ठीक है, देन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में क्या होगा, रेफरेंडम।
सिलहट में, सिलहट कहाँ पे है? ये असम में था ना, सिलहट, यहाँ पे भी रेफरेंडम होगा। ठीक है, तो ये एक थोड़े से चीजें थी। फिर एक बाउंड्री कमीशन की बात की, बाउंड्री कमीशन जो आपको पता है, लॉर्ड रेडक्लिफ, बाउंड्री कमीशन टू बी सेट अप फॉर डिफाइनिंग द बाउंड्री, दिस वाज हेडेड बाय रेडक्लिफ। ठीक है, तो कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, यहाँ पे कांग्रेस एक्सेप्टेड द डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, कांग्रेस एक्सेप्टेड द डोमिनियन स्टेटस, और eventually, as we know, things, happened, some violence also happened, and we had this independence coming into being. The Independence of India Act, Independence of India Act 1947। ठीक है, फिर दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई, इंडिया और पाकिस्तान की, विद टू गवर्नर जनरल्स। ठीक है, वहां पे जिन्ना wanted to be the first governor general, and here Lord Mountbatten was asked to continue. ठीक है, so that is how things evolved, and after that, how the integration of princely states also happened, that we have discussed in several other videos as well. ठीक है, so these are the key things. ठीक है, two dominions of India and Pakistan were created. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये आपका जुलाई 18 को आया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इट केम इनटू बीइंग इन July 18, 1947. Two dominions of India and Pakistan were created. ठीक है, so that's about it, guys. I mean, I've tried to give you a brief idea about how things are. So is that clear? I hope you have gotten some idea of the evolution of our national freedom struggle. Very briefly, I've tried to cover so that we are able to answer a few basic questions if they are asked. Any doubts? No, sir. Clear है, मतलब समझ आया, कुछ फायदा हुआ? Yes, sir.